I have discussed the transportation in plants. I want to discuss again because some problems, some queries were there. So in plants, the mostly what is transported is the carbon dioxide, water, minerals, okay, and whatever synthesized in the plant, that is food, okay, and amino acids, nitrogen, phosphorus, all these. So transportation in plants are these. So CO2 transported inside the inside or outside, by it, inside it is coming or outside it is going by stomata. Energy stores from the leaves, it goes to the next part of the body. Energy store matlab whatever food is, whatever thing is synthesized during photosynthesis, that is energy store. Raw materials like nitrogen, phosphorus, other minerals from the roots as absorbed. ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन प्लांट बिकॉज प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स बिकॉज दे आर स्टैंडिंग एट वन प्लेस. सो इनका बहुत ज़्यादा एनर्जी नीडेड, एनर्जी ड्रिवन इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, बट स्टिल दे यूज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, सो दैट इट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और एक क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन सिस्टम से तो ये होना नहीं है, बिकॉज इफ अगर रूट तक का बात होता, अगर इफ इट इज कमिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन अ लिमिटेड स्पेस, देन the through diffusion it may go, but it has to reach each and every part of the cell, then it cannot be a simple diffusion system, because plants themselves are multicellular. So by diffusion itself it cannot move. So there is a system of how this water, minerals, food is transferred from one place to another. For water it is xylem, and for water and mineral it is xylem, and for phloem, for food it is phloem. You have already knowing that two conducting vessels, vascular tissue, okay, the vascular tissue which is present, which helps in the vascular tissue which is present, which helps in the transportation, are the xylem and the phloem. Xylem helps in the transport of the water plus mineral, whereas phloem helps in the transport of the food. ठीक है, so here first of all we will first one pathway. First pathway is the transport of the water. So xylem tissue, vessels, tracheids of roots. Xylem tissue, xylem consists of xylem, parenchyma, vessels, tracheids of roots. Stem and leaves are interconnected to form a continuous system. From root to the tip of the leaf they are connected. एक चैनल बना हुआ है. So वाटर जहाँ एब्जॉर्ब होता है फिर ऊपर तक ये वन वे डायरेक्शन ऊपर तक ये पहुँचता है. Cells in the root take up ions actively from the soil. This creates a concentration difference in the roots in the soil and water move into roots from the soil. मतलब क्या होता है, जैसे ही आयन्स अंदर घुसते हैं ना into the roots from the soil, ये soil है, और जैसे ही रूट्स के अंदर वाटर के साथ साथ आयन्स, ये जो आयन अंदर डिफ्यूज करते हैं, आयन by osmosis they move. When they move through osmosis, this ion, water also moves due to concentration change हो जा रहा है. concentration change होता है तो वाटर इनसाइड में मूव करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस. ट्रांसपीरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन? ये एक सिंपल हो गया कि जाइलम से पानी और आयन कैसे अंदर घुसता है और पानी कैसे अंदर घुसता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन, evaporation of water from the leaf surface to push water to a great height. Transpiration is essential. Means देखो यहाँ पर transpiration तुमको पता है, in the class 7 also you have read that evaporation of water vapor from the leaf surface is called transpiration. तो क्या होता है कि evaporation of water molecule from the cells of the leaf create a suction pull. देखो यहाँ पर ये है ना, लीफ है ना, लीफ से जैसे ही वाटर निकलता है ना, वहाँ वाटर का स्कार्सिटी हो जाता है.
ठीक है, वाटर का स्कार्सिटी हो जाता है तो फिर वो नीचे से उसके जो इमीडिएट नीचे है ना वहाँ से वो पानी खींचता है, फिर यहाँ वाटर का स्कार्सिटी हो जाता है तो फिर वो यहाँ से पानी खींचता है, फिर यहाँ से स्कार्सिटी हो जाए तो यहाँ से, इस तरह से नीचे से ऊपर तक पानी एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। एग्जैक्टली द सेम वे हाउ जो दिया होता है ना, दिया दीपक जो दिया लगाते हैं उसमें जो बाती डालते हैं और तेल डालते हैं, धीरे धीरे वो तेल कैसे खत्म हो जाता है, धीरे धीरे जो दीपक का जो एंड होता है ना, ये सपोज दीपक है, दीपक का जो एंड है ना ये तेल को ख़त्म कर देता है, जला देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकाल देता है। तो यहाँ तो ख़त्म हो गया, अब वो नीचे से लेता है, नीचे से फिर ये लेता है, नीचे से फिर ये लेता है, नीचे से फिर धीरे धीरे जो दीपक का जो तेल है वो सब खत्म हो जाता है। इन दिस वे धीरे धीरे ये सक्शन पुल जो है ना, इट पुल्स, यहाँ जैसे पिक्चर में दिया है, इट पुल्स द वाटर फ्रॉम द अप टू द टॉप इट गोज। Now what are the uses of the transpiration? It uses it upward movement of water plus mineral and temperature regulation. ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है इन द समर सीजन। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। ये डिफरेंट है फूड, क्योंकि वो तो आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड द ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हियर द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, here the energy is utilized in the xylem, although water and mineral ये हुआ, वहाँ जरा सा concentration, there was a change in the concentration and the water moved in, but यहाँ or the by the diffusion or by the osmosis the just water moved in through osmosis in transport of water. But what happens in the food, it is the active transport of the food take place. Okay, translocation is the transport of soluble products of the photosynthesis such as glucose, amino acids and etc. Means amino acids बाद में बनते हैं, first glucose बनता है. So take place in phloem in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells to upward and downward both. तो फ्लोएम किससे बने होते हैं? आप यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 9. Phloem is made up of phloem parenchyma, sieve tubes and companion cells. With the help of these, the transport of the food take place. Now it take place by utilizing energy. तो ये कैसे होता है? Suppose these are the cells in which the food is being transported. तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेल है ना, वो चाहता है कि सुक्रोज को उसके नेक्स्ट सेल पर डाले, तो वो क्या करता है, वो नेक्स्ट सेल पर डालने के लिए उसको ATP इज यूटिलाइज्ड, ATP ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, ATP इज रिलीज्ड टू फॉर्म ADP प्लस PI, तो एनर्जी रिलीज होता है। तो क्या होता है, सुक्रोज इज पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू सीव ट्यूब्स से सुक्रोज आगे में पुश होता है। ये आगे में पुश होता है तो क्या होता है कि सपोज इससे इसका ही बात करते हैं, सपोज इससे इसका, तो क्या होता है, ATP इज ब्रोकन डाउन एंड वाटर मूव्स इन। ठीक है, जैसे ATP ये हो जाता है, ATP ब्रेक डाउन होता है, देयर क्रिएट्स अ लोअर प्रेशर, वहाँ लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस सेल में, इस सेल में किसी भी सेल में बोलो, जैसे ही ATP ब्रेक डाउन होता है, as the ATP is broken down and sucrose is moved forward, water moves in, या ऐसे बोल सकते हैं, ATP is broken down, water moves in, due to which the material are pushed outside. ATP ब्रोक डाउन हो गया, वाटर आया तो ये मटेरियल आगे ठेला गया, फिर यहाँ पर क्या होता है, ATP ब्रेक डाउन होता है, वाटर आता है, ये आगे ठेला गया, पानी का अंदर जाना और उसमें जो मटेरियल सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल है वो आगे की ओर पास हो जाना। ठीक है, passes to the next issue. ATP is broken down, ATP is broken down, water in, sucrose goes to the next cell. Is in this way, क्योंकि हर एक सेल के लिए फूड को आगे जाने के लिए ATP का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो इन दिस वे ATP इज यूटिलाइज्ड व्हेन वी ईट फूड। हम लोग को लगता है कि वी आर गेटिंग एनर्जी, दिस एनर्जी, क्यों हम खाना खाने के बाद एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो फूड है ना, एक तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है ATP रिलीज करने में, प्लस ATP खुद ब्रेक हो रहा है। ठीक है, आवर फूड इज कन्वर्टेड टू फॉर्म ATP,
एंड दिस एटीपी इज ब्रोकन डाउन, पहले से जो हमारे बॉडी में एटीपी है ना वो ब्रेक हो रहा है सेल्स में, एक एक सेल्स में फूड आगे बढ़ने में। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक सेल से दूसरे सेल्स में जब खाना जा रहा है, सुक्रोज जा रहा है, तो एटीपी इज ब्रोकन डाउन, एडीपी प्लस पीआई ब्रोकन डाउन। सो ये जब ब्रेक करता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है, तब हम लोग को एनर्जेटिक फील होता है। ठीक है, जब हम खाना नहीं खाते हैं, व्हेन वी डू नॉट ईट एनी फूड, तो अब यहाँ से यहाँ कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जब यहाँ से यहाँ कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो एनर्जी हम लोग को रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो हमको एनर्जेटिक फील होता ही नहीं है। ठीक है, सो इन दिस वे नीड्स ऑफ द प्लांट, according to the need of the plant, this transport of the food take place. I hope you understood. Okay, now learn.